Okay, good morning everyone. Now we'll start today's lecture with the key learnings of the previous lecture. Okay. On last lecture, we were discussing some certain tips for designing FAs, and then we have started discussing the design of FAs. Okay. So basically, we have discussed two principles which I have named as the mutually exclusive state principle. This we have done through the FA that accepts all words of even length. So we have seen that there are only two possibilities, that length is either even or odd, and then we have made the states corresponding to it. So we have found the mutually exclusive possibilities and made the states corresponding to it. So this was the first principle which we have discussed. Then second, we have discussed the principle of success path through the FA that accepts all words starting with an A over the alphabet AB. So here what we have done, we have drawn a success path. We tried to analyze what is required for the success. So from the start state, we have drawn that success path. So we have done whatsoever was required to the success. So we have drawn that part and we have reached to the success. Then we have completed all other remaining transitions. Okay, so this was the method of success path. So we have discussed these two methods, and we have also discussed that most of the machines or most of the FAs, you can say, can be made easily by using any of the above two approaches. So normally 90, I have told you almost 90% of the FAs will be made using any of these two principles. Okay. Then we have started discussing another FA that accepts all words over the AB that contain a triple letter, that is either triple A or triple B in them. And through this, we have discussed many concepts. Okay, so we have made it through the success path. Okay, and in this particular example, we have seen that more than one success path is possible. So I'm just going to that slide. So this was the last slide which we were discussing. So here you can see this is the FA corresponding to all words containing a triple A or triple B in them. So there are two success paths. One is this one, that is corresponding to triple A, and another is this one, that is corresponding to triple B. Okay, so more than one success paths are also possible. Then each state has a specific, another concept which we have learned is each state has a specific responsibility which no other state is bearing. So if we carefully look at in our FA, each state has its own work. Okay, though that no other state is doing. So like you can see that in this particular FA, if you look at this particular state, I just changed the color. If you look at this particular state, so this state is having the responsibility of holding all those words in which you have just read an A, and before it you haven't read an A. So only a single A you are having. So holding all these strings which are in which last letter read is a single A. Similarly, this is a state which is holding the responsibility which says last two letters read are double A. So last letter read is also A, and then previous to that letter is also an A. So if you are having two consecutive A's, all those strings will come to this state. Similarly, in this state is holding all these strings which are having in which you have just read a single B, and this state is having the responsibility in which you have just read two consecutive B's. So last letter read is B and previous to that letter read is also B. And similarly, this is the state where you have found the success. So three consecutive A's you have found, and this state is having the responsibility that three consecutive B's has been found, and now you have reached to the success, and you are not going to leave that success because final transitions of both these two states were same. So you are able to share these two states also. Okay, so if the responsibility of two states, another concept which we have discussed is the responsibility of two states is same, those states can be merged into a single state. So the same thing we have done here, because the responsibility of these two states were similar. Once you are in
either in this state or in this state. You are doing nothing. You are simply consuming whatsoever is coming after it. And in this state also you are doing the same thing. Whatsoever is coming, you are consuming it in the same state only. That's what you are able to merge these two states, and we have come to this design where a single final state was there. Okay, in many of the FAs, I have told you that it may not be possible. So with the experience, you will come to you will be knowing that where these states can be shared and where these states cannot be shared. As a thumb rule, I have told you that whenever you have any such confusion, make two separate states. Okay, because our first aim is the functionality should be correct. Quality or the optimization of design is not our priority. It is the secondary aim. Our first primary aim is that functionality should be correct. So this was one more, that our primary aim is to make a machine with correct functionality. This is our primary aim. So we'll focus over it. Quality of the design or the optimization of design is our secondary aim. Okay, so this we will leave for future. So this was all we have discussed, and we will continue with the with our agenda of designing FAs using these tips. Okay. Is it clear to everyone? Can we move forward? Yes, sir. Okay. So now we'll Yes, continue. sir. We will continue with the other examples. So on the screen, you can see that now we have to design an FA that accepts all words over sigma. Sigma is again AB. Okay. Having the B as third letter. Okay, having B as the third letter. Okay, so this is our problem now. Now, if we have to make an FA corresponding, first of all, we should know that what words will be in this language. So can you tell me what words will be in this language? What will be the minimum length of the words in this language? Yes, class, what will be the minimum length of the words? 3. Okay. 3. Because we are emphasizing on the property that third letter is B, means at least 3 letters should be there. Only then it is possible that at third position B comes. Okay. So at least length in this any word in this language will be 3. So my words will be something like this. I can say A, B, then A, B, B, then B, A, B, then B, B, B. What I have done, because third letter should be B. You can see here, third letter should be B. Now, what will be the first 2 letters? So anything can come on the first 2 positions, either A or B. There are only 2 possibilities, either A can come or B can come. So I have taken all the combinations. If I take all the combinations for length 2, so it becomes AA, AB, BA, and BB. So I have put all those words, and then third letter is B. Similarly, now I can make further words. Suppose I take this word, this basic word AAB. So यहाँ तो ये fix हो गया. After this third letter, what can come? Anything can come. So if I take an epsilon, then AAB will occur. If I take an A, then the word will become AABA. If I take a B at the 4th place, then word become AABB. Okay. And then on this right hand side, not only single length word, 2 length words can also come. So if I write all the 2 length words, so the words will become AAB is there. So now what can come? AA can come. Then AAB is there. Then AB can come. Then again AAB is there. And then BA can come. AAB is there. And then BB can come. So I have taken all the combinations where length is 2. Similarly, for length 3, for length 4, length 5, I can keep on writing the words. So this I have done only through this. Similar work can be done through this, this, and this. Okay. So in this manner, we will be able to generate all words which are having this property that third letter is B. Now we have to write the regular expression corresponding to it. So regular expression is simple. Now at third place, we must have a B. What we may have at second place, what we may have at first place, and what we may have after the third place. So what we may have at first place, either A or B, as we have seen. So
simply it will be A plus B. What we can have for the second place? Again, either A or B. So we will be writing A plus B and B. Okay. From this, we have made these four basic words of length 3. Okay. Now what after it can come? So for this, nothing has been mentioned. So anything can come because I only need that at third place there should be a B. So first two place should have been filled and third place should be filled with B, and after it anything can comes. And for anything what we write, we simply write A plus B asterisk. So for asterisk, if we take 0, we will take all the words of length 0 here. If we take 1, then we have all the lengths of all the words of length 1 as we have taken here. Then after AAB, we have put A or we have put B. And then if we take 2 for this star, then after this A, after this third B, we can put all the words of length 2. So we have put AA, AB, BA and BBA. So in this manner, we are generating the word. So this will be the regular expression corresponding to the to this language. Okay, so the regular expression is A plus B, A plus B. So first place, second place, and then at third place, there should be only B. A is not possible. And then after it, anything can come. So this will be the regular expression for this particular machine. Is it clear? Repeat कर दीजिए एक बार. Yes, sir. In this, I have told you that third place पे B होना चाहिए, ठीक है? तो पहले place पे कुछ भी हो सकता है, या तो A आएगा या B आएगा, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? We will write A plus B. For second place, what is possible? Again, the possibility is either A can come or B can come. So we'll write A plus B. Third place पे हमारा B ही आना चाहिए, A नहीं आ सकता, so that's why we are writing only B. And after the third place, what can come? Anything can come. Okay, because I want in my words that third position should be occupied by B, nothing else. Okay, so after it anything can come. So for anything what we write, we simply write A plus B asterisk. So in this manner we have formed this regular expression A plus B, B and A plus B asterisk. So this will be the regular expression for this particular FA. Is it clear? Now we can move forward. Yes, sir. To the design of FA. Now how we will make the design for this particular FA? I'm giving you 1 minute. You on your copies, you make your own design, then compare whatsoever you are designing with the design which I am making. Okay, just draw on your copies. I cannot see that what you are doing that, but I am giving you time because I want that with me you should start practicing designing FAs. Okay, so that depends on you whether you do it or not. Okay, probably some of you have made your designs. So now I am writing, we will take here the success path. जब भी आपको लेंथ से रिलेटेड कुछ दिया हो कि third letter is B, so you are being given a sequence. So whenever a sequence is there, always your success path will work easily. Okay, so that's why I'm starting from the start state. So this is my start state, and I am drawing a success path. So my first letter is what? My first letter is what? Either A or B. So A हो या B हो, मुझे क्या इस पर distinguish करना है कि कहाँ जाना है? No. But simply I have to consume a letter. Okay. So how I will remember to consume a letter? Suppose on A and B I make a self loop here. So will I be able to know that how many letters I have consumed? Because क्योंकि पहला A आएगा तो वो भी आप इसी स्टेट पे जाएंगे, अगला B आ गया तो भी इसी स्टेट पे आ गए, अगला A आया तो भी इसी स्टेट पे आ गए. So you will not be able to distinguish that how many letters you have consumed. So whenever you want to count, whenever
you want to count how many letters has been consumed so that you can remember only by through the change of the state. Meaning thereby, if you are reading an input symbol, whether it is A or B, you simply move to another state. So whenever you are in this particular state, you know that one input symbol you have consumed, no matter whether it is A or B. कहीं पे अगर आपको distinguish करना हो कि A के consume करने पे क्या होना था और B के consume होने पे कुछ different होना था, then on A you will move to a different state, on B you will move to a different state. But here in our case, either we read A or B, simply we have to move forward because पहले A और B के लिए क्या होगा, it is not mentioned in the properties of the language. We are only concerned with the third letter. We are not concerned with the first or second letter. So simply first two letters has to be consumed, and we should remember that we have consumed two letters. So here if we are in this particular state, so I am writing a 1 here, simply just to mention you that we have consumed one letter. Then similarly, we will be writing A comma B and we will move to another state. Okay, again I will not stay here because अगर यहाँ पे मैं self loop बना दूंगा तो again मुझे नहीं पता चलेगा कि second, third, fourth कितने letters मैंने consume कर लिए. So I wish to remember that I have consumed two letters. So another letter will take me to another state. So I am writing it 2 here. So if I am in this state 2, then it simply means that from the starting 2 letters I have consumed and all 4 combinations will leave you here. So if it is AA, so first A will lead you here, another A will lead you here. So you will be in the second state. Suppose it is AB, so first A will lead you in the first state 1 and second B will lead you to the state 2. Similarly is the case for BA. So first B will lead you to the state 1 and the second A will lead you to the state 2. Similarly, if it is BB, the first B will lead you to the state 1 and another B will lead you to the state 2. So no matter whether it is AA, AB, BA or BB, you will ultimately come to this state 2. Okay. Now after this, you will be reading the third letter. That third letter is important. If that third letter is a B, then your string is successful. If that third letter is an A, then your string is unsuccessful. So I am drawing the success path. So my third letter should be B. And after reading this B, I should be at the final state. So what I have done, I have drawn a success path. यानी कि पहले 2 letter कुछ भी हो, third letter should be B. अगर ऐसा होता है, then I will reach to the success. I will reach to the final state. अब क्वेश्चन ये है कि ये जो फाइनल, अब मुझे बाकी ट्रांजिशंस कंप्लीट करने हैं तो मैं एक एक करके करना शुरू करता हूँ. अब मैं फाइनल स्टेट पे तो पहुंच गया, थर्ड लेटर मेरा बी हो गया. अब इसके बाद ए बी या आगे कोई भी स्ट्रिंग आए, कुछ भी आए, क्या मेरी ये जो सक्सेस मुझे मिली है मुझसे छिन सकती है? क्या ये मैं सक्सेस से अवे जा सकता हूँ? नो, क्योंकि एक बार थर्ड लेटर बी हो गया तो हो गया. आगे चौथा, पांचवा, छठा लेटर कुछ भी आए, बट दैट विल नॉट चेंज दिस स्टेटस दैट थर्ड लेटर इज बी. एंड for accepting a word in your language, your third letter should be B that you have found. Okay, so on A or B, you are not going to move from this particular state. So on A or B, you will make a self loop here. Is it? You will make a self loop here. अगर आप ध्यान से देखें तो A plus B asterisk आ रहा था यहाँ पे, anything. So normally A plus B asterisk के लिए हम क्या करते हैं, एक self loop बनाते हैं. Okay, इसको मैं रूल की तरह नहीं बता रहा, just आपको एक correlation बना करके बता रहा हूँ. In certain cases this correlation will not happen, but in most of the cases this correlation will happen as it is designed. So rules नहीं है यहाँ पे. These are only the observation and guidelines. Okay, so with experience you will learn कि कहाँ पे क्या आपको करना है. Now it is clear? Up till now it is clear? Yes, sir. Okay. But still I have not completed all the transitions. Okay. अब देखिए इस स्टेट का A और B दोनों पे ट्रांजिशन है, इस स्टेट 1 का A और B दोनों पे ट्रांजिशन है, इस स्टेट 2 का केवल B पे ट्रांजिशन है, A पर नहीं है. इस स्टेट का A और B दोनों पे, यानी कि इसका A पे ट्रांजिशन कहाँ जाएगा? मींस अगर मुझे इस सेकंड स्टेट में A मिला होता, B नहीं मिला होता, B मिला तो मैं सक्सेस पाथ पे बढ़ गया. अगर A मिला तो क्या है, मेरी फेल्योर है ना? Is it is failure or not? Yes, it is failure. So I will move away from the success path. दूसरे 2 ऑप्शन थे मेरे पास कि या तो मैं A पर यही सेल्फ लूप कर लेता, अगर A पे यहाँ सेल्फ लूप कर लेता यानी यहीं पे स्टे करता और फिर मेरे को B मिल जाता चौथे, पांचवे या किसी और प्लेस पे, तो भी मैं सक्सेस पे आ सकता था. So that should not happen.
दैट शुड नॉट हैपन. क्यों? क्योंकि बी मुझे थर्ड लेटर ही चाहिए. अगर थर्ड लेटर मेरा ए आ गया तो फिर चौथा पांचवा आगे कुछ भी है, इट डजंट मैटर, दैट विल बी ए फेल्योर. Okay, so that's why I will not make a loop on A here. I will simply move away from this state. And success path को मैं follow नहीं कर सकता, इस state पे मैं stay नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना है, इससे away move करना, किसी और state पे जाना है. अब मैं इस state पे पहुंच गया. इस state पे पहुंचने का मतलब क्या है कि third letter is not B. Third letter is not B. अगर third letter B नहीं है तो मेरा क्या है, it is a failure. और एक बार ये failure हो गई तो क्या इस failure को मैं success में बदल सकता हूँ? ना, क्योंकि आगे कुछ भी आ जाए बट थर्ड लेटर तो ए ही रहेगा, थर्ड लेटर तो बी नहीं होगा. सो दैट्स व्हाई इट इज ए परमानेंट फेल्योर. जहां परमानेंट फेल्योर है देन आई विल बी मेकिंग ए लूप हियर ए बी, क्योंकि मैं कभी भी मुझे सक्सेस नहीं मिलनी, तो इट इज ए फेल स्टेट, इट इज ए फेल स्टेट. सो आई विल बी लूपिंग बैक टू दिस स्टेट. सो आगे चाहे ए आए बी आए कुछ भी आए, I will be sticking to this state and my string is going to be rejected because my third letter is A. Here my third letter is B, so my strings are going to be accepted चाहे आगे कुछ भी आए. So in this manner I have completed all the transitions of this FA and this is the design of this FA. Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. So now we move to the other example. FA that accepts only one word BAA. So what will be the L? L will be consisting of only one word, that is BAA, nothing else. Okay, अभी जैसे previous example को हम देखें, जैसे ये previous example था, इसमें आप देखिए मेरे पास infinite words थे, क्योंकि A plus B, A plus B, B, A plus B asterisk, जहां भी asterisk आ गया वहां you can generate infinite number of words. Okay, so this was an infinite language. So I have written some of the words in this language, not all. So there are many other words which I have not written here. So there were infinite words. Similarly, इससे पहले भी जो हमने example discuss किए उसमें भी जो है हमारे infinite words थे. So this is the first language which is having the finite length. So it is consisting of only a single word BAA. So this should be accepted. Everything else should be rejected. Is it clear? Language is clear to everyone? Yes, sir. Okay, what will be the regular expression for it? पहले प्लेस पे केवल बी आना चाहिए, दूसरे प्लेस पे केवल ए आना चाहिए, तीसरे प्लेस पे केवल ए आना चाहिए, चौथा कोई प्लेस BA square. BA square. Yes, correct. Simply you write BAA. So this will be the regular expression. मैंने आपको कहा रेगुलर एक्सप्रेशन जब हमने डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस किया था कि रेगुलर एक्सप्रेशन में जो हमारे सिंपल सिंबल्स हैं, इफ आई राइट ए सिंपल सिंबल सपोज ए, सो इट डिनोट्स द लैंग्वेज ऑफ ए सिंगल वर्ड, that is only a single A. So this, because I am writing in the bracket, and it is a language because it is being represented by a regular expression. Similarly, if I write an A plus B, it simply represents a language of two words, either A or B. So this is a language something like this. Similarly, if somewhere I write simply AB, so this is also a regular expression because एक रेगुलर एक्सप्रेशन मेरी ए है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन मेरी बी है, और दो रेगुलर एक्सप्रेशन का कॉन्केटिनेशन भी तो एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगी. आप वहां ध्यान करिए, उसकी डेफिनेशन में मैंने आपको लिखा था इफ R1 इज ए रेगुलर एक्सप्रेशन, इफ R2 इज ए रेगुलर एक्सप्रेशन, देन R1 R2 विल आल्सो बी ए रेगुलर एक्सप्रेशन. So this is a concatenation. So AB will also be a regular expression which is representing only a single word AB. Is it? Similarly, here BAA is a regular expression representing only a single word BAA. Is it clear? So language is clear, regular expression is clear. Class, if you have any doubt, you can ask. Okay. So now we move to the design of the FA for BAA. Again, here you see success path will help you. Okay, I'm drawing a success path. Minus first letter should be what? First letter should be a B. So I will be writing a B. मुझे ये देखना सक्सेस के लिए क्या चाहिए? सक्सेस के लिए मुझे पहला लेटर B चाहिए, सेकंड लेटर A चाहिए, थर्ड लेटर A चाहिए. तो पहला लेटर B. अब मैं कैसे रिमेंबर करूंगा कि मेरा पहला लेटर आ गया और B आ गया? So simply I will change the state.
ओके, क्योंकि अगर मैं यहाँ सेल्फ लूप लगा दूंगा, यहाँ अगर सेल्फ लूप लगा दूंगा तो एक भी आया, दो भी आया, दूसरा लेटर भी आ गया, तीसरा भी आ गया, चौथा भी आ गया, मुझे पता ही नहीं चलेगा, इज इट? सो मुझे केवल पहला लेटर कंज्यूम करना है और दैट शुड बी एन बी. सो दैट्स व्हाई आई एम मूविंग टू दी अनदर स्टेट एंड आई एम मार्किंग इट एज, आई एम लेबलिंग इट एज बी. ओके, सो इनिशियल स्टेट में पहला लेटर बी आया, देन आई हैव मूव टू दिस स्टेट. सो बीइंग इन दिस स्टेट मींस व्हाट? that I have recently read an B. Okay, so I'm writing a B here. I'm giving the name to this state. So इस state में होने का मतलब क्या है कि मेरा पहला लेटर B मेरे को मिल गया. Then second letter should be A. So I will term this state as suppose BA. Okay, so इस state में होने का मतलब क्या है कि मेरा पहला लेटर बी था और दूसरा लेटर ए था, तभी मैं इस स्टेट पे पहुंचूंगा. इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है इस स्टेट पे पहुंचने का. आप कुछ भी और इनपुट दीजिए इस एफ को. सेल्फ लूप लगा देंगे. क्या चीज? स्पेस? आप सर बीए पे ही सेल्फ लूप लगा सकते हैं. बी पे ही सेल्फ लूप लगा सकते हैं ए का. ओके, यस, मैंने बी पे सर बी ए पे, बी ए पे, हाँ बी ए पे क्या करेंगे? सेल्फ लूप ए बी का. ए बी का मतलब मैं समझा नहीं. अभी तो हम बी ए पे आए हैं, अभी आगे की बात तो बाद में करेंगे, पहले यहाँ तक देख लीजिए. बी ए पे होने का क्या मतलब है? बी ए पे होने का मतलब क्या है कि मेरा पहला लेटर बी था और दूसरा लेटर ए था, तभी मैं यहाँ पहुंचा हूँ. यहाँ पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं है मेरे पास. आप इस एफ ए को कोई भी और इनपुट दीजिए, आप इस बी ए स्टेट पे नहीं पहुंचेंगे, इज इट? अब आप बी ए स्टेट पे आ गए, यानी कि पहला लेटर बी मिल गया आपको, दूसरा लेटर आपको क्या मिल गया? ए मिल गया. दूसरा लेटर आपको क्या मिल गया? ए मिल गया. तो अब तीसरा लेटर क्या चाहिए? तीसरा लेटर भी आपको ए चाहिए. ओके, सो दैट्स व्हाई ऑन आई विल ड्रॉ ए थर्ड ए एंड आई विल रीच टू दिस स्टेट. दिस स्टेट विल बी द फाइनल स्टेट. क्योंकि मुझे सक्सेस के लिए क्या चाहिए था? एक बी, उसके बाद एक ए, उसके बाद एक ए. तो ये तीन इस सीक्वेंस में मुझे मिलेंगे तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा? फाइनल स्टेट में पहुंच जाऊंगा. तो सक्सेस पाथ तो मैंने ड्रॉ कर लिया. यस सर, अब सेल्फ लूप लगा देंगे ए कॉमा बी का अभी आगे फाइनल में. इतना फास्ट क्यों चल रहा है वो? अभी आगे एक बार देख लेते हैं ना क्या होगा. ओके, सो आई हैव रीच टू दिस फाइनल स्टेट. ओके, सो ये मेरा सक्सेस पाथ कंप्लीट हो गया. मुझे क्या करना है? बचे हुए ट्रांजिशंस कंप्लीट करने हैं. बचे हुए ट्रांजिशंस कंप्लीट करने हैं. अभी मैं फाइनल स्टेट की बात नहीं कर रहा कि इस पर सेल्फ लूप आएगा कि नहीं आएगा. अब की बार मैं स्टार्टिंग से शुरू कर रहा हूँ सपोज. ठीक है, फाइनल से शुरू करेंगे तब भी जो है कुछ कंक्लूजन निकलेगा, बट सबसे पहले स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, इससे आपको आसानी रहेगी. स्टार्ट स्टेट में अगर मेरे को बी मिला तो मैं सक्सेस पाथ पे आगे बढ़ गया, इज इट? अगर मुझे ए मिले तो क्या मैं सक्सेस पाथ पे आगे बढ़ सकता हूं? नहीं, इज इट और नॉट? अगर मुझे नहीं बढ़ सकता, क्या मैं यहां स्टे कर सकता हूं इसी स्टेट पर, स्टार्ट स्टेट पे एक लूप लगाकर? नो सर. वो भी नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मुझे पहला लेटर सक्सेस के लिए बी चाहिए. ठीक है, अगर पहला लेटर मेरा ए है और मैंने सेल्फ लूप लगा लिया तो कितने भी ए आए आई विल रिमेन एट दिस स्टेट. और जैसे ही पहला बी मुझे मिलेगा आई विल मूव ऑन दी सक्सेस पाथ. जबकि मुझे सक्सेस पाथ पे कब मूव करना है? जब मेरा पहला लेटर ही बी हो. पहला लेटर ए होना ही नहीं चाहिए, इज इट? सो पहला लेटर ए क्या होगा? मुझे किसी और स्टेट पे ले जाएगा. सो ऑन ए आई विल मूव टू सम अदर स्टेट, सपोज दिस स्टेट. ओके, अब इस स्टेट पे अगर मैं आ गया, यानी पहला लेटर मेरा ए हो गया, तो मैं सक्सेस पाथ से अवे आ गया. बट क्या मैं दोबारा कभी सक्सेस पाथ को ज्वाइन कर सकता हूं? ए के बाद नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि पहला लेटर जब ए आ गया तो पहला लेटर कभी भी बी नहीं हो सकता. यानी कि अगर मैं कहीं बीच में भी सक्सेस पाथ को ज्वाइन कर लूं तो मैं जो प्रॉपर्टी है लैंग्वेज की, पहला लेटर बी होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसको वायलेट कर दूंगा. क्योंकि मेरा पहला लेटर तो ए आया, अगर पहला लेटर ए आया तो मैं कभी भी सक्सेस पे नहीं पहुंच सकता. यानी कि ये जो भी पाथ में जिस पाथ पे भी आगे आया हूं, ये पाथ कभी भी सक्सेस पे नहीं पहुंचेगा, इज इट? तो यानी कि अब आगे कुछ भी आए, माई स्ट्रिंग इज गोइंग टू बी रिजेक्टेड. अगर ए से शुरुआत हो गई तो आगे कुछ भी आए, माई स्ट्रिंग इज गोइंग टू बी रिजेक्टेड. और इट इज ए नॉन फाइनल स्टेट, तो मैं फिर क्या करता हूँ? इसी स्टेट पे स्टिक करता हूँ, आगे कुछ भी आता रहे, अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता. अब तो एक बार फेलियर हो गया तो हो गया, परमानेंट फेलियर हो गया. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर. ओके, तो यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया. अब देखिए इस स्टेट का बी पे ट्रांजिशन है, ए पे ट्रांजिशन है, इस स्टेट का ए और बी दोनों पे ट्रांजिशन है. ये दोनों स्टेट हमारी फिट हो गई. अब हम आते हैं इस बी स्टेट पे.
इसका ए पे तो ट्रांजिशन है, यानी कि अगर मैं इस स्टेट पे हूं, मुझे एक बी मिल चुका, अगर अगला ए मिला तो सक्सेस पाथ पे आगे बढ़ जाऊंगा, इज इट और नॉट? अगर अगला ए मिला तो सक्सेस पाथ पे Yes, आगे sir. बढ़ूंगा, लेकिन अगर ए नहीं मिला, बी मिला तो क्या होगा? सर जो नीचे अवे पाथ बनाया है उसी पर ज्वाइन कर देंगे। यस, अगर बी मेरे को मिला तो ना तो मैं सक्सेस पाथ पे आगे बढ़ सकता हूं, ना यहां स्टे कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैं यहां स्टे करूंगा तो एक बी अगर मेरा आया, 2 बी आया, 3 बी आया, मैं यहीं पे स्टे किया, उसका जब भी ए आया फिर आगे बढ़ गया, यानी कि मेरी जो प्रॉपर्टी थी सेकंड लेटर शुड बी ए, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। सेकंड लेटर ए होना चाहिए, सेकंड लेटर बी आने के बाद थर्ड लेटर ए और फोर्थ लेटर ए आ गया तो भी तो मैं सक्सेस पे पहुंचूंगा, जो कि मुझे नहीं पहुंचना है, इज इट? सो दैट्स वाई बी पर ना तो मैं सक्सेस पाथ पे आगे बढ़ूंगा, ना यहाँ स्टे करूंगा, मैं अवे जाऊंगा। अब अवे जाऊंगा तो क्या करूंगा? अगर बी से मैं अवे जाता हूं, मैं सपोज एक डिजाइन कर लेता हूं समथिंग लाइक दिस, बी पे मैं एक अलग स्टेट पे चला गया, बी पे मैं क्या चला गया? एक अलग स्टेट पे चला गया, इज इट? अब इस स्टेट पे क्या होगा? अगर मैं बी पे यहां आया तो क्या मैं वापस कभी सक्सेस पे पहुंच सकता हूं? No, sir. कभी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि सेकंड लेटर मेरा ए होना चाहिए था, लेकिन यहाँ सेकंड लेटर बी हो गया। ये फैक्ट कभी भी बदल नहीं सकता, आगे कुछ भी आता रहे, यानी कि सेकंड लेटर ए कभी भी नहीं हो सकता अगर मैं इस पाथ पे आगे बढ़ गया हूँ। यानी कि मेरा स्ट्रिंग तो अब आगे चाहे कुछ भी है, रिजेक्ट ही होना है, रिजेक्ट ही होना है, तो यानी कि मैं इसी पे सेल्फ लूप करता हूं, a comma b. I am not going to leave this state and this is a non final state, तो my string is going to be rejected. Okay, so इस तरह से मैंने इसको बना लिया। okay, अब यहां मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज थी, यहां मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज थी। एक तो मैं b पर अवे आकर के एक नई स्टेट बनाई मैंने। दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या थी कि मैं क्या कर सकता था, जस्ट आई एम टेक चेंजिंग द कलर, इस b पर मैं जो है, जो मेरे पास ऑलरेडी एक स्टेट थी, उस जगह उस स्टेट पे आ जाता, तब भी तो सेम ही रहता। क्योंकि अगर आप देखिए, ये जो स्टेट मैंने नई बनाई है, इसकी फंक्शनिंग क्या है कि ये सारे स्ट्रिंग्स को वहीं का वहीं रखेगा और स्ट्रिंग इज गोइंग टू बी रिजेक्टेड। इस स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? इट इज ऑल्सो हैविंग द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक बार आप यहाँ पहुंच गए तो फिर सारे के सारे आप यहीं पे रहेंगे एंड ऑल स्ट्रिंग्स आर गोइंग टू बी रिजेक्टेड। ओके, तो अब अगर किसी काम के लिए ऑलरेडी आपके पास एक स्टेट है तो उसके लिए नई स्टेट बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप उसी स्टेट को यूज और यूटिलाइज कर सकते हैं। सो बजाय इस पे जाने के मैं क्या कर सकता हूँ, इस सिंपल इस पे भी आ सकता हूँ। हालांकि अगर आप इसको अलग स्टेट पे ले जाएं और इसके अलग ट्रांजिशन इस तरह से बना करके कंप्लीट कर दें, इट विल ऑल्सो बी ए करेक्ट डिजाइन। मैंने फिर आपसे कहा था कि मेरा पर्पस क्या है, प्राइमरी एम क्या है, फंक्शनैलिटी शुड बी करेक्ट, नो मैटर कि मेरा डिजाइन ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं है। इसमें क्या होगा, मेरी मल्टीपल जो है फेलियर स्टेट आएंगी, दिस इज फेलियर स्टेट 1, दिस विल बी द फेलियर स्टेट 2। इसी तरह से जब आप यहाँ पे आएंगे, देयर विल बी ए अनदर फेलियर स्टेट समथिंग लाइक दिस। जब यहाँ आप आएंगे तो अनदर फेलियर स्टेट आपकी जो है आ जाएगी। सो स्टेट्स ज्यादा हो जाएंगी बट डिजाइन करेक्ट होगा। ओके, लेकिन आप चाहें, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ये चीज भी यूज कर सकते हैं कि आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो स्टेट है उस काम के लिए उसी को यूटिलाइज कर लीजिए। Is it okay? So any of these two designs will be correct. So now I am removing this eraser through the eraser this. Okay. So I have suppose made like this. Okay. Now यहाँ तक हमारा हो गया, इस बी स्टेट का ए पे ट्रांजिशन हो गया, बी पे भी ट्रांजिशन हो गया। अब मैं बी ए स्टेट पे पहुंच गया, यानी कि मतलब क्या है, मेरा पहला लेटर बी था, दूसरा लेटर ए था, अब तीसरा लेटर ए आ गया तो सक्सेस, इज इट? लेकिन अगर तीसरा लेटर ए नहीं आया, बी आ गया, तो इट विल बी ए फेलियर, वापस अवे मूव कर जाएंगे सर। यस, इट विल बी ए फेलियर एंड इट विल बी ए परमानेंट फेलियर, क्योंकि तीसरा लेटर ए होना चाहिए, अगर बी हो गया तो इट इज ए फेलियर। आगे कुछ भी आता रहे, कभी भी वो फेलियर सक्सेस में नहीं कन्वर्ट होनी। यानी कि सिमिलर सिचुएशन क्या है, इसी स्टेट पे मेरे को जो है मूव करना है। आई विल मूव टू दिस स्टेट। अब जैसे मैंने आपको पहले वाले डिजाइन में बताया था, आप चाहें तो एक तीसरी स्टेट यहां से निकाल करके अलग भी बना सकते थे, दैट इज द थर्ड फेलियर स्टेट। यहाँ से आपकी पहली फेलियर स्टेट आई थी, यहाँ से सपोज आपकी दूसरी फेलियर स्टेट आई थी, तो यहाँ से आपकी तीसरी फेलियर स्टेट आ जाती। सो मल्टीपल स्टेट के साथ भी बना सकते हैं, बट आई एम ट्राइंग टू मेक ए गुड ऑप्टिमाइज्ड डिजाइन। सो दैट्स वाई मैंने क्या किया, इस बी को जो ऑलरेडी मेरे पास स्टेट थी, ऑलरेडी एक फेल स्टेट मेरे पास थी, वहां मैंने उसको भेज दिया। एक बार मेरे को थर्ड प्लेस पे बी मिला, तो अब आगे कुछ भी आता रहे, मेरा स्ट्रिंग तो सक्सेसफुल होना नहीं, तो मैं यहीं पे जो है कंज्यूम करूंगा सारे आगे के लेटर्स और स्ट्रिंग को क्या कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा। इज इट? अब
बी ए के बाद अब सपोज मुझे तीसरा लेटर ए मिल गया, अब इसके भी देखिए ए पे भी हो गया, बी पे भी हो गया, अब रह गया ये फाइनल स्टेट के ट्रांजिशन। सपोज आप इस फाइनल स्टेट पे पहुंच गए, इसका मतलब क्या है, पहला लेटर बी था, दूसरा लेटर ए था और तीसरा लेटर भी ए था, तभी आप इस फाइनल स्टेट पे पहुंचे। इज इट? आपका स्ट्रिंग सक्सेसफुल है। बट क्या आपकी ये सक्सेस फाइनल है? क्या ये सक्सेस से आप अवे नहीं जा सकते? जैसे अभी पिछले जितने भी पिछले एग्जाम्पल्स हैं उन सब में क्या था, हमारी सक्सेस परमानेंट थी कि उसके बाद आगे कुछ भी आया कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इसमें अगर आगे कुछ भी और आया तो फर्क पड़ जाएगा। मान लीजिए अब इसमें अगला लेटर आया ए, बी ए आ चुका है, अगला लेटर आया ए, तो ये मेरा वर्ड क्या बन जाएगा, बी ए और चौथा लेटर आ गया ए। तो क्या ये वर्ड लैंग्वेज का पार्ट है? ना। दिस बी ए ने आपको फाइनल स्टेट पे तो पहुंचाया, लेकिन अगला ए क्या करेगा, सुसाइड कराएगा आपको और वापस इस फेल्यूर स्टेट पे ले आएगा। सो ऑन नेक्स्ट ए यू विल बी मूविंग अगेन टू द फेल्यूर, नॉट ओनली ऑन ए, ऑन बी एज वेल, ऑन बी एज वेल। सो अगला लेटर ए या बी कुछ भी आए, सो यू हैव टू लीव दिस स्टेट, यू कैन नॉट स्टे ऑन दिस स्टेट। क्योंकि अगर आपने इस पे सपोज सेल्फ लूप बनाया तो आपका बी ए के अलावा बी ए भी एक्सेप्ट हो जाएगा, बी ए बी भी एक्सेप्ट हो जाएगा, बी ए बी भी एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर आपने यहाँ सेल्फ लूप लगा दिया तो। इज इट? सो यानी कि ये जो आपको सक्सेस मिली है, दिस सक्सेस इन दिस पर्टिकुलर केस इज नॉट परमानेंट। यानी कि एक बार आप सक्सेस पे पहुंचे तो, लेकिन उसके बाद अगर कुछ और आ गया तो अगेन इट इज ए फेल्योर एंड इट इज ए परमानेंट फेल्योर, क्योंकि उसके आगे कुछ भी आता रहे, एक बार फेल्योर होगी तो फिर हमेशा फेल्योर ही रहेगी। सो ऑन ए बी also you will move to this fail state. I hope it is clear to everyone. Yes, sir. Okay. So meaning there भाई, अभी तक हमने पिछले जितने भी एग्जाम्पल देखे थे उन सब में हमारी फाइनल स्टेट पे पहुंचने के बाद हमारी जो सक्सेस थी वो परमानेंट थी। सो दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल जिसमें कि फाइनल स्टेट पे पहुंचने के बाद भी हम फेल्योर पे जा सकते हैं। So our success is not permanent. So in your FAs you have to carefully look at whether your success is permanent or not. So even if you reach to the final state, you have to see what will be the transitions of the final state. In some of the cases it will be a self loop. In some of the cases you may have to go away from the final state. So this is the example where you have to go away from the final state if you are reading the next letter. Is it clear? Because my language is containing only a single word, that is BA, and everything else has to be rejected. Is it? Is it clear? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So now we सर yes. सर इसमें हम फाइनल स्टेट पर पहुंचने के बाद जब अबे स्टेट बना रहे हैं तो वो भी तो अलग बना सकते थे ना, मतलब हाँ, किसी भी स्टेज पे आप अलग स्टेट बना सकते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, लेट मी चेंज द कलर, ब्लू। ओके, बजाय इस ए बी को यहाँ ले जाने के आप क्या करते, इस ए बी को एक अलग स्टेट बनाते, ए एंड बी। सो यू हैव कम टू दिस स्टेट एंड दिस विल बी ए फेल स्टेट, क्योंकि आगे जो कुछ भी आएगा, सो आप बजाय इस ट्रांजिशन को यहाँ ले जाने के एक अलग स्टेट भी बना सकते थे। बाकी तीन आप यहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ, और इस चौथे को आप यहाँ ले जा रहे हैं, या आप हर एक के लिए अलग अलग बना रहे हैं। सो एनी कॉम्बिनेशन यू कैन डू। ओके, तो बस फर्क केवल क्या पड़ेगा, चूंकि इस स्टेट का और इस स्टेट का आप देखें, जो मैंने ग्रीन से ये स्टेट बनाई है और ये जो ब्लू से स्टेट बनाई है, दोनों स्टेट्स को अगर आप देखें तो इन दोनों स्टेट की फंक्शनिंग सेम है। सो दैट्स व्हाई इट इज पॉसिबल टू मर्ज दीज टू स्टेट्स इनटू ए सिंगल वन। क्योंकि आप देखिए, जब हम कोई भी मशीन या कुछ भी डिज़ाइन करते हैं, मान लीजिए आप कोई बिल्डिंग ही डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई कंपोनेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कुछ रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप अलग अलग लोगों को वो प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के लिए दें तो कुछ लोग कुछ रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, कुछ लोग कुछ रिसोर्सेज यूज़ करेंगे। जो भी व्यक्ति जितने रिसोर्सेज यूज़ करेगा, पर रिसोर्स कुछ कॉस्ट होगी। ओके, सो जो जितने कम रिसोर्सेज में उसको बनाएगा उसकी कॉस्ट उतनी कम होगी। अब अगर वो सारे प्रोडक्ट मार्केट में आए तो कौन सा प्रोडक्ट चलेगा? वो प्रोडक्ट चलेगा जिसकी कॉस्ट सबसे कम है। यानी कि जिस प्रोडक्ट को सबसे लो कॉस्ट के कंपोनेंट से या फिर सबसे कम कंपोनेंट से डिज़ाइन किया गया है, वो प्रोडक्ट जो है सक्सेसफुल होगा, बिकॉज दैट इज ए बेटर डिजाइन, दैट इज ए बेटर डिजाइन। सो इसी तरह से एफएज में भी है। मैंने आपको फिर कहा कि एनी मशीन अराउंड यू कैन एज्यूम एज ए फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन। ओके,
कोई भी मशीन आप करें, आप देखिए कोई भी जो मशीन डिज़ाइन है वो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन की हेल्प से डिज़ाइन होती है। जितने आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है वो सब सारी की सारी जो है फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन या इसी तरह के स्टेट सिस्टम के थ्रू जो है डिज़ाइन होती है। तो अगर वो डिज़ाइन ऑप्टिमाइज नहीं होंगी, उनकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो जो है आपके रिसोर्सेज की क्या हो रही है, वेस्टेज हो रही है। सो अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो भी डिज़ाइन हो वो ऑप्टिमाइज्ड हो। ओके, लेकिन फिर मैंने आपको फिर कहा कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम नॉट स्ट्रेसिंग ओवर द ऑप्टिमाइजेशन। आई एम नॉट आप देखिए आपने ये एफ बनाया, इसमें आपकी कितनी स्टेट है? सपोज मैं अज्यूम करता हूं कि मेरा ये वाला पोर्शन नहीं है, इज इट? यहां तक ये सब ऐसा ही है और यहाँ ऐसा है, तो इसमें कितनी स्टेट यूज हो रही है? 1 2 3 4 5 6 स्टेट यूज हो रही है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरा ये वाला पोर्शन नहीं है और ये वाला पोर्शन है, तो मेरी कितनी स्टेट यूज हो रही है? 4 5 स्टेट यूज हो रही है। सो विच डिजाइन इज बेटर? Certainly this design is better. बट अगेन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आप बेटर डिजाइन पे अभी ध्यान मत दीजिए। अगर आपको कन्वीनियंट ये लग रहा है कि नहीं मैं अलग स्टेट बना करके बना लूं, तो आप अलग स्टेट से बनाइए। नो मैटर हाउ मेनी स्टेट्स यू आर यूजिंग, योर डिजाइन शुड बी करेक्ट। अवर प्राइमरी फोकस इज दैट योर डिजाइन शुड बी करेक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Okay, so now I am removing whatsoever is additional, so that you may not be confused when you see the slides. Okay, just I have removed something extra. Comma B. Is it okay? A comma B. Is it okay? So now can we move to the next problem? So next problem is FA that accepts only the null string. We have to design a FA over AB that accepts only null string. यानी कि केवल null string accept होना चाहिए, बाकी सब कुछ reject होना चाहिए। बना सकते हैं इस डिजाइन को? जल्दी से अपनी कॉपीज पे बनाइए फटाफट। केवल null string accept कराना है, बाकी सब कुछ reject कराना है। डिजाइन बना लियो। Meanwhile we discuss what will be L. L will be consisting of only a single word, that is the epsilon. It is also a finite language, is it or not? L is only containing only one word, that is the null string, that is the epsilon. Okay, so it is a one word language. What will be the regular expression? Again the similar one, simple without bracket. If I write epsilon, so it will be a regular expression. Regular expression की definition पे ध्यान करिए। हमारी basic regular expressions क्या थी? सारे के सारे इनपुट अल्फाबेट सिंबल्स, वो रेगुलर एक्सप्रेशन है। इसके अलावा नल एंड फाई, नल स्ट्रिंग यानी कि एप्सिलॉन एंड फाई, these two are also the regular expression. So we have discussed what will be the regular expression and what will be the language, what will be this language. Now come on the design of FA. So I am making a design. मुझे नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट कराना है। कॉन्सेप्ट क्या है? स्टार्ट स्टेट शुड बी दी फाइनल स्टेट, क्योंकि अगर स्टार्ट स्टेट फाइनल स्टेट नहीं होगी देन यू कैन नॉट एक्सेप्ट नल स्ट्रिंग। पुराना कॉन्सेप्ट याद करिए। सो इट विल बी माइनस एज वेल एज प्लस। सो जैसे ये हुआ आपका नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया। लेकिन अब इसमें क्या है कि बाकी सब कुछ रिजेक्ट करना है। अब अगर मैं ए पे सेल्फ लूप लगा दूं तो जितने भी ए या ए से बनने वाले वर्ड्स हैं वो सब भी क्या होंगे? एक्सेप्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसी स्टेट पर आएंगे। सो क्या होना चाहिए? यानी कि ए अगर मेरा आ रहा है so it should move away from this state, so it should go to some other state. Similarly अगर B है so B should also go away from this starting state, क्योंकि मुझे नल के अलावा बाकी सब कुछ रिजेक्ट करना है। so नल के अलावा बाकी सब कुछ कहाँ जाना चाहिए? इस फाइनल स्टेट से दूर जाना चाहिए। और दूर जाकर जिस स्टेट पर पहुंचना चाहिए, ये स्टेट क्या होनी चाहिए? इट शुड बी ए नॉन फाइनल स्टेट। ओके, नॉन फाइनल स्टेट होगा तो सिंगल ए और सिंगल बी विल गेट रिजेक्टेड। इसके बाद मुझे सेकंड लेंथ के, थर्ड लेंथ के, फोर्थ लेंथ के वो सारे वर्ड भी क्या करना है? सब कुछ रिजेक्ट करना है। सो देयर शुड बी ए सेल्फ लूप हियर A B. So this will be the design. I don't know how many of you have made the similar design. Someone has made the similar design? Yes, sir. Okay, very good. Yes, So sir. FA design for this particular FA is clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now I am making, I am taking another problem, that FA that accepts everything except the null string. We have already made the FA corresponding to it. शुरुआत में जब हमने बेसिक FAs डिस्कस किए थे तो उसमें ये प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी, इज इट? सो यू मे बी नोइंग द FA corresponding to it. इसमें क्या करना है?
सब कुछ एक्सेप्ट होना है केवल नल स्ट्रिंग के, केवल नल स्ट्रिंग रिजेक्ट होगा, बाकी सब कुछ एक्सेप्ट होगा। अगर आपको ध्यान हो तो इसका एफ मैंने क्या बनाया था, इसका एफ मैंने कुछ ऐसे बनाया था माइनस, चूंकि मुझे नल स्ट्रिंग रिजेक्ट करना था तो इसलिए स्टार्ट स्टेट फाइनल स्टेट नहीं होगी, इज इट, and AB everything else has to be accepted, so AB and AB loop and this will be a final state, is it? कुछ ऐसा ही FA बनाया था ना, ध्यान करिए, नहीं तो अपनी कॉपीज प्लट करके देख लीजिए। ये FA हमने बनाया था, FA that accepts everything except the null string। तो देखिए null string तो यहाँ रिजेक्ट होगा क्योंकि स्टार्ट स्टेट फाइनल स्टेट नहीं है। सिंगल A will get accepted, सिंगल B will get accepted, और उसके बाद ए और बी से 2 या 2 लेंथ से जितने भी बड़े वर्ड्स बनेंगे वो सब यहीं पे टर्मिनेट करेंगे, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, एक्सेप्ट होंगे। सो एवरीथिंग एल्स विल बी एक्सेप्टेड। अगर आप इन दोनों एफएस को ध्यान से देखें, दोनों के डिजाइन कुछ सेम लग रहा है ना। इसमें भी देखिए 2 स्टेट हैं 1 2, इसमें भी 2 स्टेट हैं 1 2, इसमें भी ए बी पे ट्रांजिशन पहले से दूसरे पे जा रहा है, इसमें भी दूसरे में ए बी पे सेल्फ लूप है, दूसरे में ए बी पे सेल्फ लूप। फर्क केवल क्या है कि इसमें स्टार्ट स्टेट फाइनल स्टेट है और इसमें स्टार्ट स्टेट के अलावा जो स्टेट है वो फाइनल स्टेट है। अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो ये जो L है और ये जो L डैश है, दीज आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट से क्या मतलब, ये जो कुछ L में है वो L डैश में नहीं है, जो कुछ L डैश में है वो L में नहीं है। अब देखिए L में क्या है, L में केवल एक वर्ड है एप्सिलॉन, और L डैश में क्या है, L डैश में सब कुछ है, A B AA AB BA BB, इसका 3 लेंथ वाले सारे वर्ड्स एंड सो ऑन, इज इट। केवल क्या नहीं है, एप्सिलॉन नहीं है, यानी A और B पे जितने भी वर्ड बन सकते हैं वो सारे वर्ड इस L डैश में है, वो सारे वर्ड इस L डैश में है एक्सेप्ट एप्सिलॉन। और यहाँ L में क्या है, A B पे जितने भी वर्ड जनरेट हो सकते हैं उनमें से केवल एप्सिलॉन यहाँ है, बाकी सारे वर्ड मिसिंग है। सो L और L डैश ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, इज इट क्लियर। दीज आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। वैसे भी कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन तो आप लोग सब समझते होंगे ना, कि कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि जो पहले में है वो दूसरे में नहीं है, जो दूसरे में है वो पहले में नहीं, तभी वो एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट होंगे। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, Yes, sir. अब इनके एफएज अगर आप देखें, एफएज फॉर एल अभी हमने देख ही लिया है कि एफएज फॉर एल एंड एल डैश आर सेम except the final states, except the final state. Final state of L, final state of L क्या है, ये this one, first one, this one is non-final state in L dash। ये L dash में क्या है, it is a non-final state, okay, and non-final state of L means this one is a final state in L dash, so it is a final state in L dash। केवल ये डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। इससे हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ वी नो द एफए फॉर ए लैंग्वेज एल, अगर हमें किसी लैंग्वेज एल का एफए मालूम हो और हमें बाय चांस उसके कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज का एफए बनाना हो, इज इट, सो दैट वी कैन डू वेरी इजीली। सो वी कैन वेरी इजीली ड्रॉ द एफए फॉर एल डैश। कैसे बनाएंगे, वी विल ड्रॉ दी सेम एफए, हम सेम एफए जो एल का था वही एफए बना लेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट that final states of L will now be the non-final states and all the non-final states of L will become the final states of L dash। ठीक है, क्लियर है, यानी कि डिजाइन वही रहा, सब कुछ वही रहा, नंबर ऑफ स्टेट्स भी वही रही, सारे ट्रांजिशंस भी वही रहे, बस केवल जो L की फाइनल स्टेट थी वो L डैश में क्या होंगी, सारी की सारी नॉन फाइनल स्टेट, और जितनी भी नॉन फाइनल स्टेट थी L में वो सारी की सारी L डैश में क्या होंगी, फाइनल स्टेट। So simple, by making this change you can always draw an FA easily corresponding to a complement language। अगर आपको ओरिजिनल लैंग्वेज का FA मालूम है तो आप कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज का FA आसानी से निकाल सकते हैं। Later on we will be looking at this design principle and you will see that some of the languages which are very difficult to for which drawing FA is very difficult, बहुत आसानी से बना सकते हैं आप उसकी कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज का एफए बना करके, इज इट। अदरवाइज आप डायरेक्टली बनाने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो लेटर ऑन वी विल बी लुकिंग एट दीज एग्जांपल्स। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू दैट हाउ वी कैन मेक एफए कॉरस्पॉन्डिंग टू ए
language which is complement of some other language. Is it clear or any doubt? Yes, sir. Okay. So this I am stopping at this point because अभी 10:55 हो गए हैं and अगर अगला एग्जाम्पल लूंगा तो इट विल टेक मोर टाइम. ओके, सो आई एम स्टॉपिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अगर अभी तक के डिस्कशन में आपका कोई भी डाउट, कोई भी डिफिकल्टी हो, देन यू कैन आस्क. अदरवाइज आई विल क्लोज एंड टेक द अटेंडेंस. इज देयर एनी क्वेश्चन? अच्छा, एक चीज़ और भी है, आप के जो क्वेश्चंस हैं जरूरी नहीं, चूंकि यहाँ डिस्कशन करने में कई बार थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है एंड हो सकता है बाकी सबको पॉइंट क्लियर हो, किसी एक की डिफिकल्टी है, सो इट विल वेस्ट द टाइम ऑफ ऑल अदर्स. सो आपकी जो भी डिफिकल्टीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यू कैन ऑलवेज गिव मी ए व्हाट्सअप. आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए अपनी प्रॉब्लम लिख करके. सो तुरंत नहीं, बट जब भी मैं सुबह में, शाम में, किसी वक्त भी देखूंगा, सो आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज. ओके, सो दिस इज द ओनली मोड ऑफ डिस्कशन बाय विच वी कैन डू दिस, क्योंकि ये सब्जेक्ट डिस्कशन का है. अगर डिस्कशन नहीं करेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट. तो मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस सब्जेक्ट में कंटिन्यूस प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप लगातार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो छूटता जाएगा उसको दोबारा कवर करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा. तो आप लगातार प्रॉब्लम्स करते रहिए, उसमें जो भी डिफ़िकल्टियाँ हैं वो डिफ़िकल्टी मेरे को भेजते रहिए, ठीक है. अच्छा, मैंने ऑलरेडी टीम्स के असाइनमेंट सेक्शन में एक कुछ क्वेश्चंस का एक फाइल डाली है जिसमें कुछ क्वेश्चंस का बैंक है विच आर बेस्ड ऑन फाइनाइट ऑटोमेटन्स. ओके, सो मल्टीपल क्वेश्चंस है उसमें, शुरू के क्वेश्चन, लास्ट के क्वेश्चन. डिफ़िकल्टी लेवल मैंने इंक्रीजिंग नहीं रखा है. आपको इजी क्वेश्चंस बीच में भी मिल सकते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन शुरू में भी मिल सकते हैं. यू जस्ट ट्राई टू सी दोज क्वेश्चंस, और उसमें से जो क्वेश्चन आप अभी तक के डिस्कशन से सॉल्व कर सकते हैं उनको सॉल्व करना शुरू करिए, ठीक है. जैसे जैसे हमारा डिस्कशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यू विल कीप ऑन सॉल्विंग इट, और उसमें आपकी जो भी डिफिकल्टी आती है वो डिफिकल्टी लगातार आप पूछते रहिए. इज इट? तो आप एक बार असाइनमेंट सेक्शन देख लीजिएगा, वो सबमिट नहीं करना है, मैंने उस पर मेंशन भी किया है, उसके कोई मार्क्स नहीं है. दैट इज नॉट योर असाइनमेंट. ओके, दैट इज ओनली फॉर योर प्रैक्टिस. फिर भी मेरा एडवाइस है कि आप इसकी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए, थोड़ा मोटा रजिस्टर बनाइए, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे. तो एक थोड़ा मोटा रजिस्टर बना लीजिए और उसमें जो भी क्वेश्चन करें, क्वेश्चन लिख करके उसका सॉल्यूशन वहीं पे करते जाइए. तो इससे क्या है, आपको बाद में जो एग्जाम टाइम पे जब क्विक रिविजन की आवश्यकता होगी तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आप लास्ट में एग्जाम टाइम पे सारे ऑटोमेटा की प्रैक्टिस नहीं कर सकते. सो यू हैव टू गो थ्रू दीज क्विकली. तो आपने अगर पहले से बना रखे हैं, पहले से प्रैक्टिस कर रखी है, तो आपके लिए रिवीजन जो है आसान हो जाएगा. इज इट? और बाकी तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस अपने आप बढ़ जाएगा. यू विल बी एबल टू ड्रॉ एफएज एट योर ओन इजीली. तो आप लोगों को मैं सारे ऑप्शन ओपन है, आप लोग जो है व्हाट्सएप पे मुझे अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं. आई विल आंसर यू ऑन व्हाट्सएप, ठीक है. एफए अगर आप कोई डिज़ाइन करें तो आप क्या कर सकते हैं, एफए का डिज़ाइन बना करके उसका एक फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेज सकते हैं. आई विल चेक दैट. अगर करेक्ट होगा तो आपको बता दूंगा, नहीं तो उसमें जो गलतियाँ होंगी वो करेक्ट करके आई विल सेंड बैक यू अनदर पिक. ओके, या फिर उसमें मैं आपको मेंशन करके बता दूंगा कि कहाँ पे आपकी मिस्टेक है, कौन से ट्रांजिशन सही है, कौन से ट्रांजिशन गलत है, ठीक है. इसके अलावा आप लोग आपस में भी अगर डिस्कशन करेंगे इट विल बी वेरी गुड, क्योंकि डिस्कशन से आप सभी का जो है बेनिफिट होगा. ओके, सो दिस इज ऑल आई वांटेड टू डिस्कस फॉर टुडेज क्लास. नाउ आई एम टेकिंग द अटेंडेंस. यस सर, फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं? एक फाइनल ऑटोमेटा और फॉर्मल लैंग्वेजेस भी सर इसके अंदर इंक्लूडेड है? देखिए, फॉर्मल लैंग्वेजेस जो है आपकी बेसिकली 4 जो है कैटेगरीज में फॉर्मल लैंग्वेजेस होंगी, एंड उसमें जो सबसे लोअर कैटेगरी है रेगुलर लैंग्वेजेस, दैट वी आर करंटली डिस्कसिंग. ओके, सो फॉर्मल लैंग्वेजेस ये आपके चारों यूनिट में लगातार चलेंगी, ठीक है. तो फॉर्मल लैंग्वेजेस का जो इसका कैटेगराइजेशन है वो केवल आपके सिलेबस में है. एक बार आप यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जा करके सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, तो उससे आपको इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो पता चल जाएंगे, ठीक है. और अगर कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं जो है फिर अदरवाइज मैं आपको इस पे टीम्स पर जो है उसका एक डॉक्यूमेंट वेबसाइट से डाउनलोड करके डाल दूंगा. बाकी इट इज़ अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट, तो एवरीबडी कैन एक्सेस इट. तो इसलिए मैंने इसको जो है बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया. विल यू योरसेल्फ सी व्हाट इज गिवन इन द सिलेबस. ओके, so I have taken the attendance. Now you can leave the class. Thank you, sir.